کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہیں؟ یا زندگی میں سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو مدد کرے، لیکن لگتا ہے جیسے آپ اکیلے ہیں۔ یہ احساسات دل کو بھاری کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ اس کی مدد اکثر ایسے طریقوں سے آتی ہے جو ہمیں فوراً سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مدد کتنی قیمتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ قیف 16۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہماری ہر کیفیت، ہر جذبے اور ہر سوچ سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے حالات سے آگاہ رہتا ہے اور ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج ہم ان 7 اشاروں پر بات کریں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کو یقین دلائیں گی کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، زندگی کے بند دروازے اور اللہ کی حکمت۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی میں کوئی راستہ بند ہو گیا ہو، جیسے کوئی نوکری جس کی آپ کو امید تھی وہ نہ ملی، یا کوئی رشتہ جس کا خواب دیکھا تھا وہ ختم ہو گیا؟ یہ لمحات اکثر انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، اور دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ ہمیں کسی بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری سوچ محدود ہے، لیکن اللہ کی حکمت بے حد وسیع ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ مسلم شریف۔ اکثر ہمارے دل میں سوال اٹھتا ہے، میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے دوستوں کو سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن میں کیوں محروم ہوں؟ یا پھر یہ خیال کہ غیر مسلموں کو سب کچھ مل رہا ہے، ان کی زندگی پر سکون ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ سوالات ہر انسان کے دل میں آتے ہیں، لیکن ان کا جواب ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں سب کچھ عارضی ہے۔ جو لوگ دنیاوی دولت اور سہولتوں میں غرق ہیں، وہ اندر سے خالی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دنیاوی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، اصل اہمیت ہماری نیت، صبر اور ایمان کی ہے۔ اللہ ہر کسی کا امتحان مختلف طریقے سے لیتا ہے۔ جو مشکلات آپ کو مل رہی ہیں، وہ دراصل آپ کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ حدیث ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، خوشی میں شکر اور تکلیف میں صبر۔ جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، ان کی کامیابی صرف دنیاوی ہے، جو وقتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کی آزمائشوں کے ذریعے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یہ مشکلات دراصل اللہ کی محبت کا اشارہ ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک خاص اور کامیاب راستہ تیار کر رہا ہے۔ اس لیے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ نمبر 2، مشکل حالات میں دل کا سکون۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سا سکون ہے؟ جیسے کوئی اندر سے آپ کو ہمت دے رہا ہو، کوئی آپ کو یقین دلا رہا ہو کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی دی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب کوئی مومن آزمائشوں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ یہ سکون ایک نعمت ہے جو صرف اللہ کے قریب رہنے والوں کو ملتی ہے۔ مشکل وقت میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہیں اور حالات ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ لیکن اگر ایسے وقت میں بھی دل کو اطمینان ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو اندر سے مضبوط کر رہا ہے تاکہ آپ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔
आप शायद सोचें, इतनी मुश्किलात के बावजूद मेरा दिल कैसे पुरस्कून है? ये सुकून अल्लाह की तरफ से होता है, और ये इस बात का इशारा है कि वो आपको तन्हा नहीं छोड़ रहा। अल्लाह चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें और उसी से मदद मांगे। जब हम अल्लाह की याद में मशगूल होते हैं और उससे मदद तलब करते हैं, तो वो हमारे दिल को मजबूत बनाता है। ये सुकून सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ताकत है जो हमें मायूसी से निकालकर जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने के काबिल बनाती है। ये सुकून हमें याद दिलाता है कि दुनिया की मुश्किलात आरिज़ी हैं। अल्लाह ने हर आजमाइश के साथ आसानी रखी है। कुरान पाक में फरमाया गया, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 6। इसका मतलब यह है कि अल्लाह कभी किसी आजमाइश को बगैर मकसद के नहीं भेजता। वो चाहता है कि हम इन मुश्किलात से सबक हासिल करें, मजबूत बने और उसके करीब हो जाएं। याद रखें, जब दिल सुकून में हो तो ये अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी है। ये हमें बताती है कि हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा रब हमारे साथ है। अगर आपको मुश्किलात के बावजूद सुकून का एहसास हो रहा है, तो शुक्र करें और अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। जब हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और अपनी जिंदगी के तमाम मामलात उसी के स्पर्द करते हैं, तो वो हमारी रहनुमाई करता है। यही सुकून हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हर हाल में सब्र और शुक्र करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों को मजबूती देने वाला है। नंबर 3, छोटे छोटे इशारों से अल्लाह की रहनुमाई। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि किसी मुश्किल में उलझे हुए थे और अचानक जवाब आपके दिल में उतर आया? जैसे किसी ने इत्तिफाकन ऐसी बात कह दी जो आपकी परेशानी का हल थी, या कुरान की कोई आयत नजर से गुजरी और यूं लगा कि ये खास आपके लिए ही है। ये अल्लाह की तरफ से एक खास मदद होती है जो छोटे इशारों की सूरत में हम तक पहुंचती है। ये इशारे किसी दोस्त की जबान से निकले अल्फाज हो सकते हैं, किसी किताब में लिखी हुई बात, या किसी हदीस का मतलब जो दिल को सुकून दे जाता है। अल्लाह ताली का ये अंदाज हमें ये याद दिलाने का है कि वो हमेशा हमारे साथ है। जब हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, तो अल्लाह हमारी जिंदगी में ऐसे इशारे भेजता है जो हमें हमारी परेशानियों का हल या सही रास्ता दिखा सकें। ये इशारे कभी वाज़ेह होते हैं और कभी हमें गौर करने पर समझ आते हैं। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह हर दिल की हालत से वाकिफ है, और जब हम इससे मदद मांगते हैं तो वो हमारी रहनुमाई के लिए रास्ते बनाता है। ये रहनुमाई कभी किसी अच्छी नसीहत की सूरत में आती है, कभी दिल में किसी ख्याल के जरिए, और कभी जिंदगी के वाक़यात से सबक देने के जरिए। ये छोटे इशारे दरअसल अल्लाह की खामोश मदद हैं, जो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जब आपको ये महसूस हो कि कोई मामूली बात आपके मसले का हल बन गई है, तो समझ लें कि ये अल्लाह का करम है। याद रखें, ये इशारे हमेशा हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं। हमें सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब दिल को सुकून मिले या कोई रास्ता अचानक वाज़ेह हो जाए, तो ये अल्लाह की जानिब से रहनुमाई का एक तरीका है। वो हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन इशारों को समझें और उन पर अमल करें। अल्लाह की रहमत और मदद हमेशा हमारे करीब होती है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना और अपने दिल को उसकी तरफ खोलना है। इसलिए दुआ करें, गौर करें और छोटे इशारों को पहचानें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए खास रहनुमाई होती है। नंबर 4, ताखीर और सब्र की आजमाइश। कभी आपने महसूस किया कि जो चीज़ आप चाहते थे वो आपको फौरन नहीं मिली, या जो दुआ आप मांग रहे थे उसकी कबूलियत में देर हो रही थी? ऐसे लम्हात में हम अक्सर बेसब्र हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह हमें सब्र के जरिए मजबूत बना रहा होता है। अल्लाह ताली ने दुनिया को एक इम्तिहान गाह बनाया है। माल व दौलत, ऐश व इशरत या दुनियावी कामयाबियां सिर्फ ज़ाहिरी खुशी का सबब बन सकती हैं, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह की रज़ा और क़ुर्बत में है। मालदार लोगों के पास दुनियावी चीज़ें हो सकती हैं, मगर अक्सर वो अंदरूनी सुकून से महरूम होते हैं। कुरान पाक में फरमाया गया, दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और दिल लगी है, और असल कामयाबी आखिरत की ज़िंदगी में है। अल्लाह की आजमाइशें सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए हैं। मालदार अफराद के लिए उनकी दौलत एक इम्तिहान है कि वो उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोमिनों के लिए मुश्किलात उनकी शख्सियत को निखारने
और अल्लाह से करीब करने का जरिया बनती हैं। नंबर 5, नुकसान या खतरे से बचना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी बड़ी मुसीबत या हादसे से आप बिल्कुल महफूज रहे, जैसे कोई बड़ा नुकसान होने से पहले ही आप बचा लिए गए? ये अल्लाह की मदद और हिफाजत की एक निशानी है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह पर भरोसा का मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और फिर अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दें। ये यकीन रखना कि अल्लाह हमें नुकसान से बचाएगा, हमारे दिल को सुकून बख्शता है। अल्लाह पर तवक्कल का मतलब ये नहीं कि मुश्किलात नहीं आएंगी, बल्कि ये है कि अल्लाह हमें उनका सामना करने की ताकत देगा और हमें महफूज रखेगा। नंबर 6, गैर मुतवक्का मदद और सहारा। क्या आपने कभी ऐसा लम्हा देखा कि जब आप किसी परेशानी में थे तो अचानक मदद वहां से आई जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था? ये अल्लाह की खास मदद होती है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि वो हमेशा हमारे हालात से बाखबर है। कुरान में फरमाया गया, और वो इसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना हो। ये मदद किसी दोस्त, अजनबी या किसी गैर मुतवक्का जरिए से आ सकती है। अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब देता है, चाहे वो हमारी मर्जी के मुताबिक हो या उसकी हिकमत के मुताबिक। नंबर 7, मुश्किलात के जरिए तरक्की। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात ही वो थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मजबूत और कामयाब बनाया? आजमाइशें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुश्किलात हमारी जिंदगी के वो इसबाक हैं जो हमें सब्र, हिम्मत और बेहतर फैसले करने का हुनर सिखाते हैं। जब हम आजमाइशों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं तो ये हमारी तरक्की और कामयाबी का जरिया बनती हैं। अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ। ये तमाम निशानियां हमें बताती हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे करीब है, चाहे वो हमें नजर न आए। हमें बस अपने दिल को खुला रखना है और इन इशारों को समझने की कोशिश करनी है। जब आप जिंदगी में अल्लाह की इन निशानियों को महसूस करें तो याद रखें कि वो आपका हर लम्हा ख्याल रख रहा है। सब्र करें, दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा मददगार है।